یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک افریقی کہاوت ہے، نوجوان تیزی سے چل سکتا ہے لیکن بزرگ راستہ جانتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے بڑے بوڑھے ایک انمول خزانہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ درختوں کی جڑوں کی طرح وہ خاندان کو مضبوطی سے اکٹھا رکھتے ہیں، ہمیں اپنے سالوں کے تجربات سے بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ سارے مذاہب یعنی ریلیجنز بزرگوں کا احترام کرنے کا درس دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے نوجوانوں نے بوڑھوں سے عزت اور محبت سے پیش آنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ انہیں بیکار سمجھتے ہیں، ان کی باتوں سے اکتا جاتے ہیں، ان سے بیزارگی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ دو سینئر سٹیزنز کے بارے میں ہے جو معاشرے، برادری اور اپنے پیاروں کو فائدہ پہنچاتے تھے، لیکن ایک دن کسی سنگ دل قاتل نے ان پر تشدد کیا، انہیں قتل کر کے وقت سے پہلے ہی قبر میں ڈھکیل دیا۔ یہ ہے اولیور نورتھپ اور کلاڈیا ماپن کی کہانی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر ڈیوس میں 14 اپریل 2013 سنڈے کی رات کے 2 بجے کے قریب درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس تھا۔ درختوں کے پتے دھیمی ٹھنڈی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ شہر سکون سے ڈھکا ہوا تھا۔ چھوٹے محلوں میں اور بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی کیونکہ زیادہ تر شہری اپنے اپنے بستروں میں خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت ایک شخص جاگا ہوا تھا اور اس کی نیت کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ برسوں کی پلاننگ کے بعد اپنا پہلا قتل کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ قاتل نے ایک 6 انچ لمبا چھرا کئی منٹوں تک تیز کیا، پھر اس نے اپنے جوتوں کے تلووں پر ڈک ٹیپ لگایا، کالی شرٹ اور پینٹس پہننے کے بعد کالے دستانے پہنے، گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بالوں اور چہرے کو اسکی ماسک سے چھپایا۔ وہ ان احمق قاتلوں کی طرح تھوڑی تھا جو فوراً رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ قاتل مسکراتے ہوئے شکار کی تلاش میں نکلا۔ جب اولیور جیننگز نورتھپ عرف چپ اور کلاڈیا ماپن پہلی بار سن 1995 میں یونیٹیرین یونیورسلسٹ چرچ آف ڈیوس میں ملے تھے، وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ کلاڈیا کی عمر 59 سال تھی، چپ 70 سال کا تھا اور وہ دونوں پہلے سے ڈیورس تھے۔ کلاڈیا کے 3 جوان بچے تھے، چپ کے 8۔ چپ نے جوانی کے کئی سال یو ایس مرین کو دینے کے بعد یو سی برکلی اسکول آف لا سے وکالت سیکھی تھی۔ وہ آخر وقت تک کرمنل لائر رہا تھا۔ چپ کو کتابوں سے محبت تھی، وہ کئی سوشل جسٹس کلبز کا ممبر تھا اور پوٹا کریک کراڈیڈز نامی میوزک گروپ میں گٹار بجاتا تھا۔ کلاڈیا ریٹائرڈ ٹیچر تھی اور اس کا فارغ وقت فیملی، خاندان اور چرچ کے نام وقف تھا۔ کلاڈیا اور چپ ایک دوسرے کے لیے بالکل مناسب تھے، پرفیکٹ تھے، کیونکہ دونوں کی جولی خوش مزاج شخصیت تھی اور وہ جینا جانتے تھے، بہت ایکٹیو رہتے تھے۔ ملاقات کے چند مہینوں بعد ہی انہوں نے سن 1996 میں شادی کر لی۔ ان کے بچے، سارے پوتے پوتی، نواسے نواسیاں اور گریٹ گرینڈ چلڈرن اس تقریب میں موجود تھے۔ وکٹوریا ہرڈ، کلاڈیا کی بیٹی، نے کہا ہے کہ چپ اور کلاڈیا کا رشتہ بہت خاص تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ دونوں کے لیے فیملی بہت اہم تھی۔ اکثر چپ اپنے پوتوں کے ساتھ کیمپنگ پر جاتا تھا۔ کلاڈیا کئی سماجی خدمات یعنی چیریٹیز کے لیے والنٹیئر کام کرتی تھی۔ رات میں اپنے اپنے کاموں سے نمٹ کر میاں بیوی ساتھ کھانا کھا کر کوئی مووی لگا کر صوفے پر بیٹھ جاتے تھے۔ چاہے کتنی بھی دیر ہو جاتی، چپ کلاڈیا کے پیروں کو مساج کرتا تھا۔ اگر کبھی کلاڈیا اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جاتی تو وہ ان سے گڈ بائے کرتے ہوئے کہتی،
I gotta go home to Chip for my foot rub. मुझे घर जाना है और चिप से पाँव दबाना है। सन 2004 में चिप और क्लॉडिया ने अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटा सा आरामदेह 1400 स्क्वायर फुट कॉन्डोमिनियम घर 4006 काउल बुलेवार्ड पर खरीद लिया। 13 अप्रैल 2013 क्लॉडिया और चिप की शादी को 17 साल हो चुके थे जब उन्होंने उस रात आखिरी बार एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने बिस्तर में आराम से सो गए। 14 अप्रैल 2013 संडे का दिन था और उनके कई जानने वालों ने गौर किया कि वो दोनों संडे की चर्च सर्विस पर मौजूद नहीं थे। चिप की बेटी मैरी नॉर्थअप ने उन दोनों को फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर के बाद चिप का म्यूज़िक ग्रुप कहीं कॉन्सर्ट दे रहा था। उसके साथियों ने उसका इंतज़ार किया लेकिन वो गायब था और उसने नहीं आने की वजह भी नहीं बताई। चिप का बेटा रॉबर्ट नॉर्थअप चिप और क्लॉडिया के घर गया। उसने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। चंद घंटों बाद शाम के वक्त क्लॉडिया की बेटी लोरा वहां पहुंची। उसने गौर किया कि वालिदैन की गाड़ियां ड्राइववे में मौजूद थीं और घर में अंधेरा छाया हुआ था। एक भी लाइट खुली नहीं थी। काफ़ी देर तक लोरा ने भी दरवाजे की घंटी बजाई पर कोई दरवाजे खोलना नहीं आया। फिर उसने घर के पीछे जाकर देखा। लिविंग रूम की एक खिड़की खुली हुई थी। उसकी कटी हुई स्क्रीन बाहर लटक रही थी। कुछ कदम और बढ़कर लोरा ने वालिदैन के बेडरूम की खिड़की में नज़र डाली। वो जान गई कि वहाँ एक बहुत खौफनाक हमला हुआ था क्योंकि कमरे की दीवारों पर खून के रेले थे। लोरा ने फौरन 911 डायल किया और पुलिस से राब्ता किया। ये बुरी खबर क्लॉडिया और चिप के ख़ानदान वालों में आग की तरह फैल गई। पुलिस अफसरान को उनके रिश्तेदारों को घर के बाहर रोकना पड़ा क्योंकि अब वो जगह एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ क्राइम सीन बन चुकी थी। क्लॉडिया और चिप को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था लेकिन उन्हें जान से मारने से पहले कातिल ने उन्हें बहुत अजियत पहुंचाई थी, टॉर्चर किया था और उनकी लाशों की बेहुरमती की थी। यकीन मानिए, जब विक्टिम्स छोटे बच्चे, बूढ़े या जानवर होते हैं तो हमारा दिल ये जानकर टूट जाता है कि किसी भी कमज़ोर, ज़ईफ़, डिफेंसलेस और मासूम ज़ात को इतनी अजियत से दो चार किया गया है। 87 साला चिप, 76 साला क्लॉडिया बिस्तर में साथ साथ लेटे हुए थे। मैट्रेस, चादरें और तकिए उनके खून से तर थे। कातिल ने दोनों को बेशुमार चाकू के वार से हलाक किया था। उनकी लाशें जगह जगह से कटी हुई थी जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स बायोलॉजी की क्लास में मेंढक वगैरह को डाइसेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैसे ही कातिल ने दोनों विक्टिम्स की आंतें जिस्म से बाहर निकाल कर रख दी थी। क्लॉडिया की रान और सीने से चर्बी और गोश्त के टुकड़े काट काट कर उसने बिस्तर पर सजाए थे। कातिल ने क्लॉडिया के चेहरे को भी छोड़ा नहीं था। उसने होठों से कानों तक कट लगाए थे। इसे चेस्टशायर ग्रिन कहा जाता है। इस टाइप का जख्म शायद आप द डार्क नाइट मूवी में जोकर के चेहरे पर देख चुके हैं। चिप के माथे को चीड़ा पहाड़ा गया था। उसकी एक आंख का पपोटा यानी आईलिड काट कर जमीन पर फेंका गया था। डेविस पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटर्स और 25 के करीब FBI एजेंट्स ने तहकीकात शुरू की लेकिन क्राइम सीन से कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं मिला। कातिल ने अपना हथियार वहां छोड़ा नहीं था। उसका ना फिंगरप्रिंट्स ना फुटप्रिंट्स क्राइम सीन से बरामद हुए, ना ही कोई DNA मिला। चिप और क्लॉडिया का पोस्टमार्टम किया गया। चिप के जिस्म पर 65 के करीब जख्म थे और उसके पेट में कातिल ने कांच का ग्लास छुपाया था। क्लॉडिया की लाश पर 74 जख्म थे। हमला इतनी शिद्दत से किया गया था कि क्लॉडिया का एक दांत टूट कर गिर गया था। कातिल ने उसके पेट के अंदर चिप का सेल फोन छुपाया था। इस अजीब व गरीब हरकत का क्या मकसद था? डिटेक्टिव्स ने पड़ोसियों से पूछगछ की। किसी ने कुछ नहीं देखा था, ना सुना था। सर्वेलेंस कैमरों में भी कुछ नजर नहीं आया। बताया गया कि हाल में उस इलाके में कई घरों पर डकैती और चोरियां हुई थी लेकिन इस तरह वायलेंट और पुरतशद्दुद नहीं।
چپ اور کلاڈیا کے گھر کا جائزہ لینے پر واضح ہوا کہ کچھ چوری نہیں ہوا تھا، سارا سامان، قیمتی چیزیں وہیں کی وہیں تھی۔ قتل اس درندگی سے کیا گیا تھا کہ ڈیٹیکٹیوز واقعی حیران تھے۔ عام طور پر اس قسم کے حملے اس شخص کا کام ہوتے ہیں جو اپنی وکٹمز کو جانتے ہیں، ان سے بے حد نفرت کرتے ہیں۔ چپ اور کلاڈیا کے سب جاننے والے ان کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ کیا ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا تھا جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ ہو سکتا تھا کہ قاتل جانا پہچانا تھا، ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس گھر کی چابیاں بھی تھیں اور اس نے کھڑکی کا اسکرین جان بوجھ کر پھاڑا تھا تاکہ پولیس کو لگے کہ یہ قتل کسی اجنبی کا کام تھا۔ اور تو اور دو لوگوں کو ایک ساتھ قتل کرنا آسان کام نہیں۔ یہ ممکن تھا کہ قاتل ایک نہیں بلکہ دو تھے۔ ڈیٹیکٹیوز نے چپ اور کلاڈیا کے سارے بچوں سے ایک ایک کر کے پوچھ گچھ کی۔ کئی وجوہات کے بنا پر انہوں نے چپ کے بیٹے رابرٹ نورتھپ اور رابرٹ کے دو بیٹے اینٹونیو اور اولیور پر خاص توجہ ڈالی۔ رابرٹ کا گھر چپ اور کلاڈیا کے گھر سے قریب تھا۔ رابرٹ کے پاس والدین کے گھر کی چابیاں بھی تھیں۔ انویسٹیگیٹرز کو پتہ چلا کہ اولیور سکیزوفرینیا کا شکار تھا۔ سکیزوفرینیا ایک ذہنی بیماری ہے جس کے مریضوں کو غلط تصورات دماغ میں آتے ہیں، وہ چیزیں جو نہیں ہوتی ہیں نظر آتی ہیں، یعنی ہلوسینیشنز نظر آتی ہیں، انہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہ ہر کسی معمولی بات پر شک کرتے ہیں، پیرانویا اور ڈیلوژنز کے شکار ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کا پیچھا کوئی کر رہا ہے، ان کے دشمن چاہے ایلینز ہوں، حکومت ہو، ویمپائرز ہوں یا انہی کے دوست ہوں، سب ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا کچھ لوگوں نے پرتشدد حملے کیے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دوائیں لیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہرحال اولیور کو گھنٹوں تک انٹروگیٹ کیا گیا۔ ڈیٹیکٹیوز کو رابرٹ کے دوسرے بیٹے پر بھی شک ہوا کیونکہ ان کے گھر کی جب تلاشی لی گئی تھی تو اینٹونیو کے کمرے سے اس کے ہاتھ سے بنائی ہوئی ایک ڈرائنگ ملی جس میں ایک آدمی ہاتھ میں چاقو لیے دو سوتے ہوئے بچوں کے سرہانے کھڑا تھا۔ اور پھر رابرٹ کے گھر سے سٹیم کارپیٹ کلینر کے رینٹل پیپرز ملے۔ جس دن چپ اور کلاڈیا قتل ہوئے تھے اسی دن رابرٹ نے کارپیٹ کلینر کرائے پر لے کر اپنے گھر کے قالین صاف کیے تھے۔ ڈیٹیکٹیوز نے سوچا سنگین حملے کے بعد یقیناً قاتل یا قاتلوں کے کپڑے خون سے تر ہوئے ہوں گے۔ ہو سکتا تھا کہ رابرٹ نے بیٹوں کے جرم پر پردہ ڈالنا چاہا ہو اور قالین پر لگے ہوئے خون کے نشانات کو صاف کیا ہو۔ رابرٹ نے پولیس کو اپنا بیان دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب آپ کو مشکوک لگ رہا ہے، لیکن یہ صرف ایک اتفاق ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے اپنے دادا اور دادی پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی انہیں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پولیس نے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ رابرٹ کے گھر کا قالین اکھاڑا گیا۔ فورینزک ایکسپرٹس نے گھر کو اوپر سے لے کر نیچے تک الٹ پلٹ کر کے چھان بین کی، لیکن رابرٹ اور اس کے بیٹوں کے خلاف کوئی بھی الزام ثابت نہ ہو سکا اور آخرکار وہ تینوں شکوک اور شبہات سے پاک ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پوچھ گچھ، چھان بین، پولیس کی کڑی نظر اور چند رشتہ داروں کے الزامات کا بوجھ اینٹونیو کے لیے بہت بھاری پڑا۔ اسے پہلے سے دادا سے بچھڑ جانے کی وجہ سے شدید دکھ تھا اور اس حادثے کے 3 سال بعد اینٹونیو نے خودکشی کر لی۔ 27 اپریل 2013 چپ اور کلاڈیا کو ڈیوس سیمیٹری میں دفنایا گیا۔ ان کے جنازے میں جمع ہوئے سارے دوست اور احباب نے ان دونوں کو خوبصورت لفظوں میں یاد کیا۔ چپ اور کلاڈیا سب سے محبت کرنے والے، عزت دار اور شریف لوگ تھے، بھلا کون ان کا دشمن تھا؟ ڈیٹیکٹیوز نے اس کیس کی کارروائی پر مزید لوگ لگائے مگر کوئی نیا سراغ نہیں مل سکا۔ پھر اچانک قتل کے 2 ماہ بعد 16 جون 2013 کو ایک شخص نے پولیس کو فون کیا۔ یہ آنے والی آڈیو کلپ اس 911 کال کی اصل ریکارڈنگ ہے۔
Davis, place emergency. Can this be anonymous? What are you reporting? Triple homicide that happened at April. You're reporting that, or you have information regarding that? I have information regarding that. What are you calling to report, sir? The double homicide that happened in April this year. What can you tell me about that? Everything, actually. Daniel Marsh. Daniel Marsh? Yeah, Daniel Marsh or Dan Marsh. He cut open the stomach of both the people, and he put a phone in the woman and a cup in the guy. The reason why I want to remain anonymous is because if the mom finds out, she will send me to military school. कॉल करने वाले ने कहा कि वो अपना नाम बताए बगैर अप्रैल में हुए 2 कत्ल की तफसीलात देना चाहता था। उसने कातिल का नाम डैनियल मार्श बताया और साथ में ये भी डिटेल दी कि कातिल ने विक्टिम्स के पेट में फ़ोन और एक कप रखा था। चूँकि ये तफसील पब्लिक को नहीं दी गई थी, डिटेक्टिव्स जानते थे कि कॉलर सच बोल रहा था। पुलिस ने कॉलर को समझा बुझाकर थाने बुलवाया। 17 साला अल्वारो गैरिबे वहाँ पहुँचा और उसने डैनियल मार्श के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी। डिटेक्टिव्स के लिए डैनियल का नाम जाना पहचाना था, इसलिए नहीं कि वो कोई बड़ा क्रिमिनल था, बल्कि कुछ साल पहले वो शहर का हीरो बच्चा माना गया था जब उसने 10 साल की उम्र में अपने बाप बिल के हार्ट अटैक के दौरान उसे CPR देकर उसकी जान बचाई थी। डैनियल को रेड क्रॉस हीरोज अवार्ड से नवाजा गया था। मीडिया में उसकी बहादुरी और जहानत के काफ़ी चर्चे हुए थे। हर किसी से बहुत शाबाशी मिली थी। अब डैनियल 15 साल का था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, वो लड़का सिर्फ 15 साल का था। भला उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्या हो गया था जो वो इतना बदल गया था? हीरो से ज़ीरो का सफ़र उसने कैसे तय किया? डैनियल मार्श की पैदाइश 14 मई 1997 को हुई थी शेरी हॉस्किंग और विलियम मार्श उर्फ बिल के घर में। डैनियल से 2 साल बड़ी उसकी बहन सारा थी। डैनियल के इब्तिदाई बचपन के सालों के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं मिली हैं, अलबत्ता ये कहा गया है कि माँ शेरी घर पर रहकर बच्चों की अच्छी तरबियत करती थी। लेकिन डैनियल के वालिदैन की उम्र में 16 साल का फ़र्क था और वो मुसलसिल बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते थे। सन 2008 में 10 साला डैनियल मार्श को इंटरव्यू करने कई टीवी जर्नलिस्ट घर पर आए थे जब उससे बाप की जान बचाने पर काफ़ी तारीफ़ें मिली थी। टीवी इंटरव्यू के दौरान डैनियल ने बताया कि उसे स्कूल के सारे सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा पसंद था और वो एक अच्छा स्टूडेंट था। उसी साल अचानक डैनियल की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। शेरी का अफेयर डैनियल की पुरानी किंडरगार्टन टीचर मार्टी से चला और जब बिल को इस बात का इल्म हुआ तो दोनों ने डिवोर्स की कार्रवाई शुरू कर दी। माँ बाप की अलहदगी, उनका घर टूट जाना, इस सब का डैनियल पर बहुत बुरा असर हुआ और इन्हीं दिनों उसे कत्ल और गारत के ख्यालात आने शुरू हो गए। वो उस औरत से बेहद नफरत करने लगा जिसके लिए उसकी माँ ने उसके बाप को छोड़ दिया था। डैनियल दिन रात मार्टी को जान से मारने की फैंटेसीज में घूम रहता। कभी उसका गला घोटने का सोचता, कभी उसका सर कलम करने का। डिवोर्स के बाद डैनियल कभी बाप के साथ रहता, कभी माँ के घर। 11 साल की उम्र में उसे डिप्रेशन की तशखीस हुई, यानी डायग्नोसिस मिली और उसका इलाज थेरेपिस्ट के साथ शुरू हुआ। उसे दिन में 2 बार एंटी डिप्रेसेंट प्रोजैक दिया गया। 14 साल की उम्र में डैनियल एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार हुआ। वो अपनी ग़िज़ा को, खाने पीने को बुरी हद तक कंट्रोल करने लगा। उसका वज़न 93 पाउंड्स तक गिर गया। उसे नफसियाती अस्पताल में चंद महीने रखा गया। दवाओं में इजाफा किया गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया डैनियल के पुरतशद्दुद ख्यालात भी बढ़ते गए। उसने स्कूल के माहिर नफसियात यानी साइकोलॉजिस्ट को बताया कि वो मास शूटिंग का सोच रहा था और अपने फेलो स्टूडेंट्स का कत्ले आम करना चाहता था। इन बातों की वजह से 2 बार
पुलिस को स्कूल बुलाया गया, लेकिन बार बार अफसरान ने सोचा कि ये एक बीमार बच्चे की बकवास थी। डैनियल ने अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ भी इस मौजू पर गुफ्तगू करनी शुरू कर दी थी। वो आर्ट क्लास में वायलेंट तस्वीरें बनाने लगा, अपने फारिग वक्त में सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ने लगा। उसे टेड बंडी और जेफरी डॉमर खास तौर पर पसंद थे। डैनियल bestgore.com के वेबसाइट पर खौफनाक और असली कातिलाना हमले देखता था। उसने एक बार अल्वारो के सामने गली की एक बिल्ली का गला घोंट दिया। जब परेशान दोस्त ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, डैनियल ने जवाब दिया, बस मैं ये करना चाहता था, मुझे उस बिल्ली से नफरत थी। ये तो वाज़ेह था कि डैनियल एक बहुत ही बेकाबू और डिस्टर्ब्ड लड़का था, लेकिन क्या वो सच में एक बेरहम कातिल भी था? अल्वारो ने पुलिस को बताया कि कत्ल के अगले दिन डैनियल ने उससे कहा था, वो जो 2 बूढ़े कल मरे हैं, मैंने ही उन्हें कत्ल किया है। फिर उसने अल्वारो को एक खून आलूद छुरा दिखाया और कत्ल की तफसीलात दी। अल्वारो ने डिटेक्टिव से कहा, मैं नहीं जानता था कि वो सच बोल रहा है या लंबी लंबी छोड़ रहा है। डैनियल को झूठ बोलने की आदत थी। उस वक्त मैंने उसे सीरियस नहीं लिया। इसके कुछ दिन बाद डैनियल ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी कत्ल का सारा किस्सा सुनाया और गर्लफ्रेंड डर के मारे खामोश रही। अल्वारो का कहना था कि जब 4 जून 2013 को डैनियल की गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया तो वो लड़का तैश में आ गया था। डैनियल को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड और अल्वारो एक साथ मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। डैनियल ने दोनों को खूब डराया और धमकाया। वो एक रात गर्लफ्रेंड के घर में डॉगी डोर के जरिए भी घुस गया और उसने गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अल्वारो को लगा कि उसकी जान खतरे में थी और उसने पुलिस से राब्ता किया था। 17 जून 2013 इन्वेस्टिगेटर्स ने हाई स्कूल के रिसोर्स ऑफिसर से कहा कि वो डैनियल मार्श को पूछगछ के लिए थाने लेकर आए। डिटेक्टिव एरियल पिनेदा और FBI स्पेशल एजेंट क्रिस कैंपियन ने डैनियल से कई घंटों तक सवालात किए। 15 साला डैनियल बहुत इत्मीनान से पुरसुकून तरीके से सारे सवालों का जवाब देता रहा और बार बार यही कहता रहा कि उसका चिप और क्लॉडिया के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। और फिर ठीक 3 घंटे 38 मिनट बाद ऐसा लगा कि उसके चेहरे से झूठ का मास्क उतरने लगा। उसने कहा, एवरी टाइम आई लुक एट समवन इन माई माइंड आई सी फ्लैशेस ऑफ इमेजेस ऑफ मी किलिंग देम। जब भी मैं किसी को देखता हूँ मेरे जहन में उनकी मौत की तस्वीर झलकती हैं। FBI एजेंट क्रिस कैंपियन ने पूछा, तुमने उन दोनों को मारने का कब इरादा किया था? डैनियल थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, मैं तो वैसे ही फंस गया हूँ ना। डैनियल ने इसके बाद सब कुछ उगल दिया। 14 अप्रैल की रात उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी ख्वाहिश से अब लड़ेगा नहीं, वो किसी भी अजनबी का कत्ल ज़रूर करेगा। डैनियल ने माँ के कमरे से बक नाइफ चोरी की और उसकी धार खूब तेज़ की। फिर वो अपनी माँ के घर से निकलकर अपने बाप के घर की तरफ चलने लगा। डैनियल ने तकरीबन 40 घरों के दरवाजे चेक किए, इस ताक में कि कहीं किसी ने गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया हो। इत्तेफाक से डैनियल के बाप बिल मार्श का घर और चिप और क्लॉडिया के घर में सिर्फ 2 घरों का फासला था। डैनियल ने बताया कि वो चिप और क्लॉडिया को पहले से जानता नहीं था। जब उसने उनका दरवाज़ा चेक किया और लॉक पाया, वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसे ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की खुली नजर आई। डैनियल ने खिड़की की स्क्रीन चाकू से फाड़ी और घर में दाखिल हो गया। थोड़ी देर तक वो चुपचाप लिविंग रूम में खड़ा रहा। कोई सोते हुए खराटे ले रहा था। डैनियल ये आवाज़ सुनते हुए बेडरूम तक पहुंच गया। चिप और क्लॉडिया सो रहे थे। डैनियल ने बताया कि वो तकरीबन 10 मिनट तक उन्हें देखते हुए खड़ा रहा कि अचानक बूढ़ी औरत ने करवट बदली और आंखें खोली। उसकी नज़र काले मास्क वाले शख्स पर पड़ी। आदमी के हाथ में चाकू था।
क्लॉडिया चीखने लगी। डैनियल ने उस पर धड़ाधड़ हमला किया। शोर सुनकर चिप जाग गया तो डैनियल ने उस पर भी चाकू के कई वार किए। वो काफी देर तक उन पर चाकू चलाता गया। डैनियल ने डिटेक्टिव से कहा कि उसे जिंदगी भर में कभी इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट नहीं मिली थी जितनी उस आधे घंटे के हमले में मिली थी। उसने फोन और ग्लास अपनी विक्टिम्स के पेट में रखने की वजह बताई। बस यूं ही मैं इस केस के डिटेक्टिव्स को कंफ्यूज करना चाहता था। डैनियल ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसने सारे सबूत माँ के घर के गैराज में छुपाए थे। डिटेक्टिव्स ने गैराज की छानबीन की और उन्हें डैनियल के खून आलूद कपड़े, बक नाइफ और जूते मिल गए। डैनियल ने कहा, मैंने ये सारी चीज़ें यादगार सूवेनियर्स के तौर पर महफूज करके रखी थी। डैनियल मार्श का मुकदमा 2 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। अगरचे कत्ल के वक्त उसकी उम्र 15 साल थी, जुर्म की शिद्दत इतनी थी कि उसका फैसला अडल्ट कोर्ट में किया गया। डैनियल के डिफेंस लॉयर्स ने अदालत में कई साइकाइट्रिस्ट और थेरेपिस्ट पेश किए जिनका दावा था कि डैनियल वक्ती तौर पर पागल मजनू हो गया था। उसकी गलत दवाएं उसके पुरतशद्दुद वायलेंट रवैये की असल वजह थी। डैनियल को जेल की सज़ा देने के बजाय किसी साइकियाट्रिक अस्पताल में दाखिल करना चाहिए। प्रोसिक्यूटर्स ने अपने सारे सबूत जूरी के सामने रखे और कहा, डैनियल अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र महसूस करता है। डैनियल ने कहा है कि चिप और क्लॉडिया को कत्ल करने के बाद वो मजीद कत्ल करना चाहता था। कई दफ़ा रात में बेसबॉल बैट लेकर निकला था, लेकिन कोई आसान विक्टिम न मिलने पर वो घर लौट गया था। 30 सितंबर 2014 जूरी ने डैनियल मार्श को चिप और क्लॉडिया की कत्ल का कसूरवार ठहराया और उसे 52 साल की कैद सुनाई। लेकिन कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक वो 25 साल के बाद पैरोल का हकदार होगा और 42 साल की उम्र में रिहा हो सकता है। 16 मई 2018 यूट्यूब पर डैनियल की एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें वो जेल में रहते हुए टेड टॉक की तकरीर यानी स्पीच दे रहा था। उसने खुद को विक्टिम के तौर पर पेश किया। वो कह रहा था, मैं अब बदल गया हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि इस दुनिया में बुरे लोग नहीं होते हैं, सिर्फ दुखियारी, गम के मारे मजलूम लोग होते हैं। नॉर्थअप और मॉपिन खानदानों के लोगों ने इस बेशरम बेहिस वीडियो पर खूब आवाज़ उठाई और 2 दिन के अंदर यूट्यूब ने इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। क्लॉडिया की बेटी विक्टोरिया हर्ड ने हाल में CBS चैनल को ये बयान दिया है, डैनियल मार्श ने जेल में रहते हुए अपने जिस्म पर टैटू बनवाया है। उसके सीने पर मेरी माँ के जख्मों की तस्वीर टैटू हुई है। उससे किसी बात का अफसोस नहीं है और अगर मौका मिले वो दोबारा कत्ल कर देगा। उसे कभी भी जेल से रिहा करना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये थी ओलिवर नॉर्थअप और क्लॉडिया मॉपिन की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना